लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा तो आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा। ये नारा कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने दिया था, जो कांग्रेस में महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है। क्या अब वह खोखला हो गया है? चलिए बताते हैं विस्तार में आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं नजर टूटते। आज कांग्रेस पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि असम कांग्रेस ने अपने असम यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। निलंबित किया भी उसको जिसने खुद उत्पीड़न और की शिकायत दर्ज कराई। हम बात कर रहे हैं अंकिता दत्ता, जो कि असम यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष थी, और अंजन दत्ता की बेटी हैं, जो असम में तरुण गोगोई की सरकार में मंत्री थे और पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख। अंकिता दत्ता ने, जिन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर उत्पीड़न और भेदभाव का आरोप लगाया था और उसके बाद उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। For the past 6 months, IYC President Srinivas BV and his IYC Secretary in charge Vardhan Yadav has been harassing me continuously. Vardhan Yadav do not know how to respect women. He has been addressing me as a ladki, not as Dr. Ankita Datta or as President. I have complained this to the leadership. There has still not been an inquiry committee against Vardhan Yadav for talking to me like that. During the Raipur plenary session, while I was going inside Mayfair and Srinivas ji was coming out, Srinivas ji told me, "तुम क्या पी के मैसेज करता है? क्या पीता है तुम? वोडका पीता है क्या?" I was appalled that as IYC president is talking to a female state president like that. I kept quiet because I was in so much shock. I went and informed the IYC leadership. I went and informed AICC General Secretary कि इस आदमी ने मेरे साथ ऐसे बात करी है, which is completely unacceptable. So, despite your complaints, no committee has been instituted by The problem is that no inquiry committee has been initiated yet against Srinivas VP and Vardhan Yadav. That is my major concern because I have repeatedly complained against them. और वो लोग अभी now they are running this. I can send you screenshots. I've put it on Twitter also. Vardhan Yadav is making posters of me with Himanta Biswa Sharma, the CM of Assam, and saying that I am trying to please him or whatever. If a woman is speaking of the, of a self-respect and dignity of the torture and harassment she's facing, the party reacts like that. My father was in deathbed. My father was in deathbed as a Congress president. My grandfather, my father, me, we have been congressmen. We don't want to leave the party. They want to throw us out. But we love the party. People like Srinivas and Vardhan Yadav have destroyed the party. They have destroyed state politics. So, you also made an allegation that you have wrote a tweet that how can a sexy Ascender Sunawis can lead IYC? Yes, of course, because when I have sat in their conference room and I have told them clearly, I told them, please tell Vardhan Yadav to go out. I made them sit alone and I told him कि ये मुझसे ऐसे बात करता है कि ये लड़की कैसी है, ये लड़की, this is the word, ये लड़की बदनाम हो चुकी है. So these are the words he used. Today they are bringing up my CBI and ED cases. When it had started in August last year. I'm fighting alone all these cases. Had I want to be a part of BJP, August was a good time. I don't have a father. I don't have a husband. I have my mother and 3 sisters. We are doing this. We are fighting it and facing it because we are not wrong. But this is what the party reacts. Because we file a complaint against gender discrimination in the organization, about being humiliated in the organization. So, are you the lone victim or other? There are many girls who was dropped without any cause or reason by BV Srinivas. Many girls. सूत्रों के मुताबिक असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महिला के आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित पाया और पार्टी
और उसके नेताओं की छवि खराब करने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की। महिला ने बुधवार को दिसपुर पुलिस थाने में श्रीनिवास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और असम पुलिस के अपराधिक जांच विभाग यानी कि CID ने गुरुवार को उसे तलब किया था। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर सेक्सिस्ट और अराजकवादी होने का आरोप भी लगाया था। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW ने भी असम पुलिस से आरोप की जांच करने को कहा था। सूत्र ने कहा है कि CID श्रीनिवासन की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकता दर्ज करा सकती है और मामले की गहन जांच भी करेगी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि श्रीनिवास और उनके एक अन्य IYC नेता वर्धन यादव ने उनके साथ उसके लिंग के आधार पर भेदभाव किया था और उसे धमकाने के लिए अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया था। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अंकिता दत्ता के खिलाफ दायर एक शिकायत में BV श्रीनिवास ने पिछले 6 महीने से न केवल उन्हें परेशान और प्रताड़ित किया बल्कि शिकायत करने के लिए कांग्रेस के उच्च पद अधिकारी से संपर्क करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। BV श्रीनिवास द्वारा झेले जा रहे उत्पीड़न के बारे में बताते हुए अंकिता के कई ट्वीट आने के तुरंत बाद भारतीय युवा कांग्रेस के कानूनी प्रकोष्ठ ने कहा कि ये IYC अध्यक्ष के खिलाफ तुच्छ आरोप लगाने के लिए दत्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करेगी। एक दिन बाद ही अंकिता ने आरोप लगाया कि उसे असम यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था और BV श्रीनिवास के इशारे पर काम करने के लिए एक प्रभारी वर्धन यादव को दोषी भी ठहराया। श्रीनिवास ने भी अंकिता को कानून नोटिस भेजा और कहा है कि वह उन्हें बदनाम कर रही है। कौन सही है कौन गलत है वो तो जांच का विषय है, परंतु अगर कोई महिला एक संगठन में रहते हुए उत्पीड़न का आरोप अपने ही संगठन के नेता पर लगाती है तो वास्तव में ये जांच का विषय है और देश की सबसे पुरानी पार्टी में अगर ऐसा होता है तो ये सोचनीय है। इसमें भाजपा ने भी अपने बहुत सारे तर्क दिए हैं। भाजपा ने बोला है कि महिला सशक्तिकरण के मॉडल पर कटाक्ष करते हुए देश की सबसे पुरानी पार्टी पर निशाना साधा है। सत्ताधारी दल ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नारे लड़की हूं लड़ सकती हूं एक खोखला नारा है ऐसा कहा है। ये महिला सशक्तिकरण का कांग्रेस का मॉडल है। उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला तो उसकी शिकायतों को सुनने के लिए एक मंच प्रदान करने के बजाय उसे बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उसे कांग्रेस से हटाया गया है वह महिला के लिए अशोभनीय है। अब देखना ये होगा कि क्या महिला कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी या ऐसे ही निलंबन का तमगा दे दिया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारी के लिए देखते रहे नजर टुडे। शुक्रिया।